Hello everyone and good evening. I'm Dr. Gauri. I'm working as a clinical research associate with STEMRx, and I would like to announce that STEMRx is going to arrange a series of webinar which is related to infertility and on various different topics like PCOS, thin endometrium, early ovarian failures, azoospermia. So all these type of topics we are going to take intermittently during the course of period. Okay, and today we are having Dr. Pallavi Lari. I would like to introduce her. She is a gynecologist. She has completed her medical study from GMC Nagpur, and she has done her master's in obstetrics and gynec from RIMS Medical College, Jharkhand. She is also well trained with laparoscopic surgeries. She had a free hand on her. She had done a freehand courses on basics and advanced infertility treatments. She's also trained with ovum pickups and transfer in IVF and IUI. She's also a specialist in cosmetic gynecological surgeries like V enhancement, V tightening with that breast and butt enhancement, navel tightening. Dr. Pallavi is having a vast experience of nearly 1 decade. Nearly since 10 years, she is working as an infertility expert. I would like to introduce her. Hello, Dr. Pallavi, ma'am. Hi, Gauri. Thanks for a warm welcome. I'm very thankful to Dr. Mahajan sir for giving me this opportunity. Thank you. So, ma'am, today we are going to discuss on PCOS and infertility, PCOS related to infertility. So, first question, lots of time comes to the couple that uh, what is infertility first of all, and what is the time that they should decide that they should go for the treatment of infertility, because this is lots of time difficult within a 6 month of marriage, 1 year, or they have to wait for 3-4 years. At what is the phase that when they should decide that it is an infertility and they should take a treatment? So when patient decided to conceive and started practicing for 1 year and unable to conceive without using any contraception, 1 साल से practice कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं to conceive, कोई contraception use नहीं कर रहे, no barrier or OC pills, and even after that they are unable to conceive, then it is called as infertility. Infertility The problem is such a vast that 10 to 15% of whole world is suffering from infertility. Yes, ठीक है? recently. हर 6 कपल के बाद एक कपल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आता है आजकल. राइट. काफी ज्यादा ये केसेस बढ़ने लगे. क्या कारण हो सकता है? व्हाट कैन बी द कॉज फॉर इनफर्टिलिटी? सो इनफर्टिलिटी 2 तरीके की होती है. वन इज द प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी. सो प्राइमरी हम तब कहते हैं जब पहले से कभी भी पेशेंट ने कंसीव नहीं किया है, ना पहले कोई अबॉर्शन हुआ है, या फिर कभी कोई इशू, कभी प्रेगनेंसी रही ही नहीं है शादी के बाद, तो हम उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलेंगे. अब प्राइमरी इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हैं. कभी कभी एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो सकता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो प्रॉब्लम इक्वली इन मेल एंड फीमेल, 40% almost contribute by male and 40% almost contribute by female, and 20% are almost miscellaneous, जिसके हमको कारण ही नहीं पता. तो जैसे फीमेल की बात करेंगे तो एनाटॉमिकल प्रॉब्लम में ओवरी से शुरुआत करते हैं. तो कभी कभी ओवरीज में पानी भरी हुई या फिर खून की गुठलियां बनना शुरू होता है. अगर बहुत सारी ऐसी पानी भरी हुई गुठलियां बनती है तो हम उसको पीसीओएस बोलते हैं. जब खून की गुठलियां बनती है तो हम उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं. कभी कभी अंडादानी के अंडे पहले से ही खत्म होना शुरू हो जाते हैं, इवन फ्रॉम 25 ईयर्स ऑफ द एज. आजकल लड़कियां ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर की. ये चीज भी कंट्रीब्यूट करती है. नेक्स्ट आता है कि ट्यूब्स में कभी कभी ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो इस वजह से स्पर्म्स ओवरी तक नहीं आ पाते हैं ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, या फिर एम्ब्रियो यूट्रस तक नहीं जा पाता है. ये भी एक कंडीशन हो सकती है सिलिया डैमेज होने की वजह से. सिलिया डैमेज होने के बहुत सारे कारण हैं. एक तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज की वजह से या फिर इन्फेक्शन की वजह से
जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस या दूसरे क्लामाइडियल इन्फेक्शंस वगैरह, इन सब चीजों की वजह से भी कभी कभी सिलिया डैमेज होते हैं। कभी कभी पानी भरा हुआ होता है इन ट्यूब्स में। उसके बाद आता है कि गर्भाशय, गर्भाशय में कभी कभी पर्दा होना या फिर उनमें गुठलियां होना। गुठलियां कभी कभी बड़ी, और उनका पोजीशन कहाँ है, वो गर्भाशय के कौन से लेयर में है। अगर वो एंडोमेट्रियल लेयर पे है तो इम्प्लांटेशन फेलियर होता है बार बार। अगर वो बाहर की तरफ है तो कभी कभी प्रेशर सिम्टम्स होते हैं, जिस वजह से रिकरेंट अबॉर्शंस हो सकते हैं। उसके बाद होता है कि कभी कभी गर्भाशय की कैविटी भी छोटी होती है, ये भी एक कारण है। गर्भाशय का मुंह कभी कभी बहुत छोटा होता है, जहां से स्पर्म्स असेंड नहीं कर पाते हैं। कभी कभी यहाँ पे एंटीबॉडीज होती है, ऑटो इम्यूनिटी बोल सकते हो, स्पर्म्स के अगेंस्ट। इम्यून तो वो कंडीशंस, भी एक राइट। कारण होता है। कभी कभी इंटरकोर्स पेनफुल होता है, जिसको हम वजाइनिस्मस बोलते हैं, ये भी एक कंडीशन होती है। ये सब चीजें फीमेल्स में होती हैं। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया, ये सब चीजें भी फीमेल में कंट्रीब्यूट करती है। एज कंट्रीब्यूट करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। मेल की बात की जाए तो फिर मेल में उनका काउंट कम होना, सीमेन में स्पर्म्स का काउंट कम होना, उनकी मॉर्फोलॉजी ठीक ना होना, या फिर उनकी मोटिलिटी ठीक ना होना। कभी कभी वास डिफरेंस में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, जहाँ पे स्पर्म्स सीमेन में नहीं रहते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। लाइफस्टाइल चेंजेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये चीजें भी काफी हद तक मैटर करती हैं। तो तो बहुत ये से, हाँ, काफी सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशन काफी मैटर करती है फर्टिलिटी के लिए, राइट। ये जब भी हम बात करते हैं फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी के बारे में, एचपीओ एक्सिस के बारे में काफी सुना है। क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज एचपीओ एक्सिस, क्या है, व्हाट इज एचपीओ? एचपीओ एक्सिस काफी बार सुना है। पेशेंट भी जब भी आते हैं तो वो भी पूछते हैं कि एचपीओ एक्सिस क्या है मैम। तो अगर हम जैसे कि एच बोलते हैं, इसका मतलब है हाइपोथैलेमस, पी मीन्स पिट्यूटरी एंड ओ मीन्स ओवरी। सो ये हमारे बॉडी में 3 तरीके की ग्लैंड्स है, ग्रंथियां हैं, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करती हैं। तो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी आर लोकेटेड इन आवर ब्रेन। सो हाइपोथैलेमस एक्ट एज अ मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा, लाइक कि जब वो हमारे बॉडी में कोई भी कमांड देता है तो फिर उसके बाद में नीचे के जो भी 2 ग्लैंड्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच नाम का एक हार्मोन सिक्रेट होता है। ऐसे तो बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, पर जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जीएनआरएच हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है, वो एक्ट करता है पिट्यूटरी पे। काम ये होता है कि वो मैक्सिमम जितने भी ओवरी में से ओवम्स है या फॉलिकल्स है, उनको रिक्रूट करना शुरू करें, उनकी ग्रोथ करें। फिर जब वो रिक्रूट होना शुरू होते हैं तो ओवरीज में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ना शुरू होती है। जैसे फॉलिकल का साइज एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके पहुंचता है, एस्ट्रोजन की मात्रा एक लेवल पे जाके पहुंचती है, तो एस्ट्रोजन निगेटिव सिग्नल हमारे हाइपोथैलेमस में पास करना शुरू करता है कि अभी, जिसको हम लोग निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं, कि आपको अभी जीएनआरएच सिक्रीशन बंद करना चाहिए। अब ये जो एस्ट्रोजन है वो हमारे गर्भाशय के लाइनिंग को भी मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। दूसरा है कि एलएच, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बनाने के लिए चाहिए होता है। फिर दूसरा है कि एलएच, एलएच जब एक लेवल तक बढ़ता है तो ये जो अंडे जो बन रहे होते हैं वो फूटते हैं। जो जो फॉलिकल इसको सर्वाइव कर जाते हैं, बस वही फॉलिकल फूटता है, मतलब ओवुलेशन होता है। बाकी सब अट्रोपिक हो जाते हैं, मतलब अपने बॉडी में जो एपोप्टोसिस वाला जो मैकेनिज्म होता है उससे अपने आप ही वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है। यस। अभी जब ये फॉलिकल जब फुटता है तो वो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है, और वहां से दूसरी तरीके के हार्मोन सिक्रेट होना शुरू होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन। जब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होना, मतलब गर्भाशय की लाइनिंग को मेंटेन रखना, वो प्रिपेयर करता है कि जब प्रेगनेंसी वहां पे आएगी तो उसको न्यूट्रिशन कैसे दिया जाएगा, वो लाइनिंग कैसे मेंटेन रहेगी। और जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, जब स्पर्म ओवम को फ्यूज नहीं कर पाता है, तो ये लाइनिंग जो है अपने आप कार्पस ल्यूटियम टूट जाता है, और ये जो हॉर्मोन्स है वो अपने आप सडनली कम हो जाते हैं। जब ये हार्मोनल ड्रॉप होता है तो जो हम लोगों के निगेटिव सिग्नल हाइपोथैलेमस में गए थे, वो सिग्नल्स वापस से पॉजिटिव फीडबैक में कन्वर्ट होते हैं, और ये साइकिल फिर से
शुरू हो हाँ, जाती we call it as a menstrual cycle, which है। यस। starts. Yes. सो So, हमारे yeah, yeah. हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए ये सिग्नल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। राइट, तो नॉर्मल हार्मोन लेवल्स रहना बहुत जरूरी है. यस। सो नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच वी आर गोना टू टॉक ऑन इज पीसीओएस. सो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसके इसमें क्या होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है? सी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो पूछते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस सेम है क्या। बट पीसीओएस इज अ पार्ट ऑफ पीसीओडी इज अ पार्ट ऑफ पीसीओएस। पीसीओडी में क्या होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ओवरी तक के सीमित होती है, आपको अनोवुलेशन होता है। बहुत सारे पेशेंट आपके पास इरेगुलर मेंसेस या अमेनोरिया के रीजन की वजह से आते हैं। फिर हम जो अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इनके ओवरीज में हमको सिस्ट दिखते हैं बहुत सारे, और you can say more than 12 to 25 cyst you can see in the जो एक ultrasound। ओवम बड़ा होना और चाहिए था उसके जगह पे काफी सारे सिस्ट दिखने लग काफी जाते सारे हैं। पर उनका साइज भी जितना होना चाहिए उतना नहीं है, वो 2 to 9 mm के साइज तक ही सीमित रह हैं. जाते हैं, जबकि हमको मैच्योर ओवम पाने के लिए कम से कम 18 to 20 mm साइज का ओके, ओके. फॉलिकल चाहिए होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, हमको पीसीओडी में दिखती है। और इनमें एंड्रोजन के लेवल, जो हार्मोन के लेवल है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसको हम लोग पीसीओडी बोलते हैं। पर पीसीओएस में जो है, यहाँ पे हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म ही खराब हो जाता है, जिसमें हाइपर एंड्रोजेनेमिया हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, और ऑल ओवर द बॉडी इंफ्लेमेटरी चेंजेस दिखने लगते हैं। सो इसके डायग्नोस करने के हमारे पास बहुत सारे ये है, जैसे कि कुछ, हाँ, उनके क्या excessive सिम्टम्स देखने मिलते हैं हमें बेसिकली? इसमें इरेगुलर मेंसेस, जैसे कि मैंने बोला कि पेशेंट की पहली कंप्लेंट तो यही रहती है कि मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं है। दूसरी बात है कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एक्ने आना, वेट गेन होना, वजन कम करने में दिक्कत होना, या फिर थिनिंग ऑफ हेयर से मेल पैटर्न बार्डनेस, ये सब प्रॉब्लम होना शुरू होती है। और कभी कभी तो प्रॉब्लम इतनी सिवियर होती है कि इनमें ये, जैसे कि मैंने कहा कि पीसीओएस हो जाता है, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है हमारे बॉडी में। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, हार्ट वो चीजें हार्ट भी होनी प्रॉब्लम्स, शुरू. ये सब चीजें, हाइपर एंड्रोजेनिमिया, ये सब चीजें होना शुरू। इससे कुछ डायग्नोस करने का कोई क्राइटेरिया है कि हम किस तरह से हाँ, डायग्नोस एक करते हैं? क्राइटेरिया है जिसको रोटरडैम्स क्राइटेरिया बोलते हैं, जिसमें हम लोग अपना बॉडी में जो एंड्रोजन लेवल्स है वो देखते हैं। तो ये एक ट्रायड होता है जिसमें पॉलिसिस्टिक ओवरीज दिखेगी, अनोवुलेशन रहेगा, और एक्सेसिव एंड्रोजन लेवल्स रहेंगे। इस क्राइटेरिया में से अगर दो भी फिट बैठते हैं तो भी हम इसको पीसीओएस। आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बताया अभी, क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस? इंसुलिन की बात करें तो हमें डायबिटीज याद आता है, पर पीसीओएस में इंसुलिन कैसे हेल्पफुल है, प्लीज टेल अस. जैसे कि मैंने बोला कि इस एचपीओ एक्सिस हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉर्मल फंक्शन करना, इसके सिग्नल्स प्रॉपर होना। जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, इनमें कुछ चेंजेस आते हैं जिस वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन यूज नहीं कर पाती है। और इंसुलिन का मेन जो फंक्शन होता है, वो बॉडी के हर एक सेल ने ग्लूकोज कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, ये होता है। यही अब होता है, राइट. इंसुलिन बढ़ जाता है, और क्योंकि रिसेप्टर्स आपके काम नहीं कर रहे हैं, इंसुलिन अपना प्रॉपर काम कर नहीं पाता है, ग्लूकोज यूज नहीं हो पाता है, इस वजह से वो डायबिटीज जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। अब जब ग्लूकोज यूज नहीं होगा तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फैट में कन्वर्ट होने की वजह से ओबेसिटी बढ़ जाती है। अब जो ओबेसिटी की वजह से फैट में अलग तरीके के एंड्रोजन सिक्रीशन शुरू हो जाता है, जो बॉडी का जो सिग्नलिंग सिस्टम भी खराब होने की वजह से, जीएनआरएच की वजह से एलएच सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो ओवरी से भी एंड्रोजन निकलना शुरू होता है। ओबेसिटी की वजह से एडिपोसाइट से भी एंड्रोजन निकलना शुरू होता है, और इन सब चीजों की वजह से हमारे फेस पे जो हेयर्स दिखना, एक्ने आना, ये सब चीजें ओबेसिटी शुरू हो जाती है। ग्लूकोज यूटिलाइजेशन न होने की वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारे हर बॉडी के पार्ट में। इस पर मॉडर्न स्टैंडर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? जैसे पीसीओएस है, उसके साथ इनफर्टिलिटी है, तो स्टैंडर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या दी जाती है टू कंसीव? पहले तो हमको सब टेस्ट करना होता है पेशेंट का कि उनकी प्रॉब्लम कितनी सीवियर है।
सो वी फॉलो, फर्स्ट वी विल डू द अल्ट्रासाउंड एंड सी कि क्या प्रॉब्लम है, किस लेवल पे प्रॉब्लम है, मेल एंड फीमेल दोनों का ही हार्मोनल स्टडी, यूएसजी सब कुछ होने के बाद फिर किस तरीके का ट्रीटमेंट देना चाहिए ये डिसाइड होता है। तो कभी कभी सिर्फ नॉर्मल स्टिमुलेशन से भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, पर नॉर्मल स्टिमुलेशन एंड टाइम इंटरकोर्स जिसको बोलते हैं, या फिर आईयूआई का एक ऑप्शन है, पर इससे 10 to 12% तक की ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमको लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ता है, जिसमें आईवीएफ एंड ICSI किया जाता है, जो एडवांस ट्रीटमेंट है, जो जिसका सक्सेस रेट 40 to 45% होता है। सो ये थेरेपीज या फिर जिसपे उसी पे जाके जिस कर हो, तो ये कन्वे कर रहे थे। पर हम लोग रिजेनरेटिव मेडिसिन का भी यूज कर रहे हैं, जो आई फाइंड इट वेरी प्रॉमिसिंग, बिकॉज इन दैट वी आर रिपेयरिंग अवर मेटाबॉलिज्म हियर। तो रिजेनरेटिव मेडिसिन काफी हद तक प्रॉमिसिंग साबित हो रही है आजकल पीसीओएस में। राइट। ओसी पिल्स के बारे में आपने बताया, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक ओसी पिल्स ली जाती है तो उसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। हाँ, ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, आप कुछ बता सकते हैं? साइड इफेक्ट्स कैसे है, क्या होता है इसमें? क्योंकि पीसीओएस में प्रॉब्लम ये होता है कि आपके साइकिल्स रेगुलर नहीं होते। साइकिल्स रेगुलर करने के लिए ओसी पिल्स दिए जाते हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग तो हम लोग ओसी पिल्स यूज नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, ओसी राइट। पिल्स में इसके ये साइड इफेक्ट होते हैं कि ब्लड क्लॉट होना। ब्लड क्लॉट होने की वजह से हार्ट डिस स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वेट गेन, वजाइनल ड्राइनेस, मूड स्विंग, ये सब प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। राइट। सो इन केसेस में हमें रीजनरेटिव मेडिसिन काफी हद तक हेल्पफुल दिखती है। लाइक रीजनरेटिव मेडिसिन में ये क्वालिटीज देखी गई है कि रीजनरेशन, रीडेवलपमेंट, रिपेयर, एंटी इंफ्लेमेटरी क्वालिटीज है, जो ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए काफी हेल्पफुल रह सकती है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस कि रीजनरेटिव मेडिसिन एक ऐसे पैथी है जिसमें रीहीलिंग एंड रिपेयर सिस्टम को एनहांस किया जाता है बॉडी के। इनमें क्वालिटीज होती है कि हर तरह के सेल, एनी टाइप ऑफ स्पेसिफिक सेल कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम दिस थेरेपीज। ओके, इसमें ये देखा गया है कि स्पेसिफिकली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ऑटो इम्यून कंडीशंस, ऐसे केसेस में रीजनरेटिव मेडिसिन ने काफी हेल्प की है। सो इन केसेस में, जैसे इनफर्टिलिटी केसेस है, पीसीओएस है, ओवेरीज वर्क ठीक से नहीं कर रही है, इन केसेस में इनफर्टिलिटी के लिए रीजनरेटिव मेडिसिन आपको क्या लगता है कैसे हेल्प करेगा? जैसे कि रिजेनरेटिव मेडिसिन इज अ कंबाइन अप्रोच, पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे बॉडी का ही मैकेनिज्म है, उसी को यूज करके हम लोग अपने बॉडी को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में जो स्टेम सेल्स हैं, इनमें टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट कैपेसिटी होती है। मतलब ये हमारे बॉडी के डिफरेंट लिनिएज की तरह, हर एक बॉडी के ऑर्गन के टिश्यू की तरह ग्रो कर मल्टीप्लाई सकते हो सकते हैं। हैं। हमारे बॉडी में जो भी कुछ भी टॉक्सिन्स है या फिर कहीं पे इंजुरी है, उसको हील करने की कैपेसिटी रखते हैं, रिपेयर करने की कैपेसिटी रखते हैं, रिजनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, रिमॉड्यूलेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसी का हम लोग अपने रिप्रोडक्ट को इस सिस्टम में क्वालिटीज भी यूज कर यूज करते हैं। सकते। यस। यस। तो आप सोचेंगे कि स्टेम सेल्स कहाँ रहते हैं हमारे बॉडी में, प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड में, एमनियोटिक फ्लूइड में, प्लासेंटा में, जब बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं, यूट्राइन लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं, और इवन स्पर्मेटोगोनिया में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हमारे बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर हमारे स्टेम आरएक्स में एक रिसेंट टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके हम लोग इन स्टेम सेल्स को अपने ही बॉडी के बोन मैरो में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसमें से अलग अलग सिक्रेटोम्स या फिर पेप्टाइड्स, ग्रोथ फैक्टर्स, इनको निकाल के इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी को
पेशेंट में यूज करते हैं टू हील देयर To heal their ovaries, right? Yes. ऐसे जैसे देखा जैसे गया हम है। बोलते हम्म, हैं हुआ, तो हमने एक्सरे निकाला और डॉक्टर हमको बोले कि बस आपको प्लास्टर लगाना हो, किलर लो, 1 महीने के बाद आओ। फिर 1 महीने के बाद जब हम वापस जाते हैं डॉक्टर के पास, तो देखते हैं कि हमारा बोन हील हो गया है। तो हमने एक्सटर्नली तो कुछ नहीं लिया है, सिर्फ कैल्शियम सपोर्ट एंड पेन किलर्स ही लिए हैं, पर फिर भी हमारा बोन जोड़ने की ये ताकत बोन मैरो रखता है। इसका मतलब हमारे बॉडी में अपनी खुद की ही एक किट है जो रिपेयर करती है। फिर हम बोलते हैं कि आपको 2-3 महीने के बाद दोबारा आना चाहिए। तो जो कैलस फॉर्म हुआ होता है, मतलब एक्स्ट्रा बोन का ग्रोथ भी हुआ होता है, वो भी 3 महीने के बाद आपको प्रॉपर शेप में आया हुआ आपका बोन दिखता है। इसका मतलब है कि रिमॉडलिंग कैपेसिटी भी है इसमें। अगर कहीं पे एक्सेस कुछ है तो इसको बैलेंस करने का भी मैकेनिज्म हमारे ही बॉडी में मौजूद है। तो इसी का बेनिफिट हमको पीसीओएस में भी मिलता है। जैसे कि पीसीओएस में, और इसमें बहुत रोबस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी कैपेबिलिटी होती है कि जिसमें इंटरलूकिन्स हमारे बॉडी के होते हैं, या फिर इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हमारी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है। CD90, CD105 एंड 73 ऐसे भी होती है, जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। उसके बाद जैसे कि एंड्रोजेनेसिस जो प्रॉब्लम पीसीओएस में होती है, हाइपर एंड्रोजेनेमिया, सो रिजेनरेटिव मेडिसिन की वजह से हम लोग को इसमें भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इसमें जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट करने की जो जीन एंड्रोजन बनाते एक्सेस हैं, एक्सप्रेशंस दिखा हाँ, रहे, राइट? तो ऐसे एंजाइम को इनहिबिट करने की कैपेसिटी होती है, जैसे कि CYP17A, CYP11A1 इनको सप्रेस कर देते हैं, जिस वजह से एंड्रोजन सिक्रीशन भी काफी हद तक कम हो जाता है। और Which दूसरी has बात to यह है कि maintain. माइटोकॉन्ड्रियल एक्शन को भी एक्टिवेट करते हैं, जिस वजह से ओवुलेशन प्रॉपर होता है, हमारे बॉडी के सिग्नलिंग प्रॉपर हो जाते हैं, और पीरियड्स रेगुलर आना, या फिर हाइपर एंड्रोजेनेमिया की प्रॉब्लम ठीक होती है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम, बॉडी में हर जगह जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये सब कुछ ठीक हो जाता है। राइट, इट कैरीज एंटी इंफ्लेमेटरी क्वालिटीज कैरी करता है, जिस वजह से इंफ्लेमेशन लेवल्स काफी कम हो जाते हैं। हाँ, और रिजेनरेटिव मेडिसिन में, जैसे कि मैंने बोला, ये हमारा कंबाइंड अप्रोच है। तो इसमें हम लोग मेसेंकाइमल स्टेम सेल तो यूज करते ही है, उसके अलावा हम लोग बॉडी से टॉक्सिसिटी पहले निकालने की कोशिश करते हैं। जो भी न्यूट्रिशन डिफिसिट है हमारे बॉडी में, वो हम लोग बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग इसमें क्वांटम एनर्जी का यूज करते हैं, जिस वजह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब कुछ भी प्रॉपर हो जाता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स काफी सारे हील हो जाते हैं। कभी कभी तो पीसीओडी में आईवीएफ तक की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपका साइकिल्स इतने रेगुलर हो जाते हैं कि नेचुरल कंसीव करने नेचुरल की कंसेप्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। जैसे कि पीसीओएस में हाइपर एस्ट्रोजेनेमिया की वजह से रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के भी प्रॉब्लम होते हैं, बिकॉज यूट्राइन लाइनिंग ठीक हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम भी वहां पे सॉल्व हो जाती है। राइट, सो इट काफी सेफ है। एंड अगर नेचुरली कंसेप्शन होता है तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। इवन आई थिंक IUI IVF के भी फेलियर रेट्स ये कम करता होगा, बिकॉज मेटाबॉलिक जो कंडीशन। मिसलेनियस कॉजेज मैंने जो आपको बोला है कि 20% होता है, वो इसमें जो हमको पता नहीं है, हमारे बॉडी में ऑटोलोगस कभी कभी एंटीबॉडीज भी बनती है, तो हमारी इम्यूनिटी भी बिल्ड हो जाती है। इस वजह से कभी कभी ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं। मतलब ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस आए जिसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा मिला है हमको। There is one question, ma'am. Can we cure endometriosis by medicine? It will depend upon the size of endometriomas and how many endometriomas are there. अगर वो 4 सेंटीमीटर से बड़ा है तो ऑब्वियसली इट इज ऑपरेटिव, तब आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। पर ये जड़ से ठीक होने वाला प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या। इसमें यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है, जो ये लाइनिंग हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में
जब डेवलप होना शुरू होती है तो जो हॉर्मोन्स हमारे ओवरीज में सिक्रेट होने चाहिए और जो गर्भाशय की लाइनिंग मेंटेन करने के लिए रहने चाहिए, ये हार्मोन दूसरी जगह पे टिश्यू टिश्यू होने की हाँ। वजह से वहां भी ग्रो करना शुरू करते हैं। जैसे ये हार्मोन का लेवल ड्रॉप होता है और यूट्राइन लाइनिंग शेड होके पीरियड्स आना शुरू होता है, ऐसी ही कंडीशन और ऑल ओवर यूट्राइन बॉडी में रिप्रोडक्टिव होना सिस्टम शुरू के किया। बाहर भी शुरू हो जाती है। तो हम्म। इस वजह से वहां भी मतलब सिस्ट ब्लड फिर सिस्ट बनना शुरू होते हैं। शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका साइज कितना है। बहुत बड़ा साइज है तो ऑब्वियसली उसको ऑपरेट करना चाहिए। पर जो इनविजिबल है, क्योंकि एक बार आपने ऑपरेट किया इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो फिर गई। से नहीं होगा, राइट। अगर यस, क्योंकि कुछ एक जगह पे ये टिश्यू जो है इनविजिबल भी होते हैं तो सो बेसिकली अगर हम देखा जाए कि एंडोमेट्रियोसिस इज टाइप ऑफ ऑटोइम्यून कंडीशन जिस जो यस। बॉडी में डेवलप हो रहा है, राइट। डू यू थिंक रीजनरेटिव मेडिसिन कैन समवेयर हेल्प इन दिस केसेस? Yes, as I said कि ये depend upon the size it matters and what is your problem also matters कि आपको पेन है या फिर आपकी पीरियड्स रेगुलर है, पेन कितना मतलब आप ये कर सकते हो, कितना कितना हद तक आप पेन को टॉलरेट कर सकते हो, आपका साइज क्या है, आपके सिस्ट कितने हैं, उस वजह से राइट। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैम्पर तो नहीं हो रहा है या फर्टिलिटी हैम्पर तो नहीं हो रही है, इन पे भी डिपेंड करता है कि आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं। कैसे लेना चाहिए, राइट। थैंक यू वेरी मच, मैम। सो what message can you give to women nowadays, young girls and women, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा प्रमाण देखा गया है पीसीओएस एंड पीसीओडी का। इवन आफ्टर फर्स्ट मेंसेस के बाद ही यंग गर्ल्स में देखा जाता है इरेगुलरिटी ऑफ द मेंसेस एंड ऑल। सो डू यू हैव एनी मैसेज फॉर देम कि उन्होंने क्या करना चाहिए, कैसे लाइफ को आगे लेके जाना है, कैसे लाइफस्टाइल रखनी है ताकि दे शुड नॉट सफर विद सच प्रॉब्लम्स? फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें तो सिग्नलिंग का है ही, पर आजकल के जो हम लोगों का रहन सहन है, खान पान है, लाइफस्टाइल है और सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, हर किसी के पास मोबाइल है, एक जगह पे बैठना, ओबेसिटी बढ़ जाना, ये सब कुछ भी प्रॉब्लम इस वजह से ही सिग्नल्स खराब होते हैं। जैसे हम लोग बाहर का भी खाना खाते हैं, इसमें भी इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, इन सब चीजों से भी देखा गया है कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स काफी हद तक बढ़ गई हैं। सो आपका लाइफस्टाइल सुधारना बहुत जरूरी है, वेट मेंटेन रखना जरूरी है, हेल्दी डाइट लेना जरूरी है। क्वेश्चन है अबाउट थिन एंडोमेट्रियम. We are going to organize a different webinar on thin endometrium. It is organized on 8th of October after 3 days. So you can join for it. And can we treat infertility cases by homeopathy? There is one more question for it. Yeah, every pathy their own pros and cons. So I'm a allopathy person and I can't say कि hello homeopathy will help or not. Every pathy has their own work method, and it can suits to depends on how the patient and cases are going on. You can it is a choice of a patient what treatment they want to go with. There is one question: how can one improve their AMH levels, and can we increase it by medicine? Question. सी AMH इज हमको तो पहले जानना जरूरी है कि AMH क्या है। AMH इज एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये हम लोगों के बॉडी में कितना ओवेरियन रिजर्व बाकी है ये देखने के लिए होता है, जिसमें जो फॉलिकल्स हमारे आंखों से नहीं देख सकते या फिर अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख सकते, इनका रिजर्व कितना बाकी है ये जानने के लिए AMH जरूरी होता है। तो पहले ये एक डोगमा था कि हमारे बॉडी के उस साइड और रिजनरेट नहीं हो सकते हैं, जितने हैं उतने ही एट द टाइम ऑफ बर्थ 7 मिलियंस होते हैं, फिर वो कम होते जाते हैं रिप्रोडक्टिव एज तक आने के बाद 1 लाख तक आते हैं, फिर उसके बाद हर महीने महीने वो टूट के बहुत ही कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 400 वगैरह, और वो सब यूज हो जाने के बाद हम लोग उसको प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर भी बोलते हैं, जब वो 40 ईयर्स के पहले होता है। तो मेडिसिन से इतना कुछ तो हेल्प नहीं दिखता है, पर रिजनरेटिव मेडिसिन जहाँ पे हम लोग स्टेम सेल की ताकत जानते हैं कि वो
खुद में ही रिप्लिकेट हो सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं और डिफरेंशिएट हो सकते हैं हर बॉडी के ऑर्गन की तरह। तो रिजनरेटिव मेडिसिन से इसमें हेल्प मिल सकती है। Right, right. Can help to improve the counts. यस। एक क्वेश्चन है हमारी एक how important is metformin in PCOS? यस, जैसे कि मैंने कहा कि पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो मेटफॉर्मिन एक्ट एज ए इंसुलिन सेंसिटाइजर। तो इंसुलिन सेंसिटाइजर से हमारे बॉडी के और सिग्नलिंग जो है वो ठीक होने के लिए हेल्पफुल होता है। There is one question: stem cell used in these regenerative medicine. The regenerative medicine is a very vast pathy. There are lots of things. Stem cells are also there, and yes, PRPs, all the part of PRPs are there. There are regenerative lots of therapy. things. Yes. It differs case to case and patient to patient. Okay. Any other new question? It was very, very nice and informative webinar, ma'am. Actually, lots of concept got cleared, that how infertility and how it can be treated, and how the people should go with the treatment, and how they should take a decision. I think lots of people had cleared with their concept after this webinar. Okay, thank you. We would like to see you further. There are lots of different topics which we are going to come gradually. And if anyone want to contact with us related to the more information about regenerative medicine and the treatment, please contact on this number.